So hello everyone. At this class I am going to discuss some numericals from exercise 3.2 NCERT exercise 3.2. इसके लिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सब कुछ फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब कुछ मैं लास्ट क्लास में दे दिया। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेनली जो ASTC रूल होता है, इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ASTC रूल। जो ASTC रूल होता है वो जानना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस ASTC रूल, you should know how to find the values of each and every quadrant of all the 6 trigonometric functions. Yes, जैसे कि this is called first quadrant and the maximum angle 90 degree होता है, 0 से लेकर 90 degree, right? Another 90 that is 180 degree, another 90 that is 270 degree, another 90 that is 360 degree. So one complete rotation equal to 360 degrees. So you should know how to find the values of all the 6 trigonometric functions in all quadrants. ठीक है, in all 4 quadrants. तो ये सब कुछ चीज सिर्फ जानना जरूरी है to solve numericals from exercise 3.2. जैसे कि the first question is find the values of, I'm dictating the question, find the values of other 5 trigonometric functions. Find the values of other 5 trigonometric functions if cos x is equal to minus half, comma x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. This is given in the question. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर इसको ब्रेक करके मतलब इसका टुकड़ा टुकड़ा करके भी क्वेश्चन दे सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्यों अदर 5 बोला गया? क्योंकि वी नो देयर आर टोटल 6 फंक्शंस, आउट ऑफ 6 one value is given, that is cos x का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया गया है, cos x is equal to minus half. You are asked to find the values of those remaining 5 trigonometric functions. ठीक है, but one condition is given that x lies in the third quadrant. X lies in the third quadrant. Since x lies in the third quadrant, that's why you can see the value of cos x which is negative. Why? According to ASTC rule, in third quadrant only tan is positive, cos नेगेटिव होता है, इसीलिए cos का वैल्यू जो दिया गया है क्वेश्चन में वो नेगेटिव है। ये सब कुछ चीज नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, cos x का वैल्यू नेगेटिव क्यों दिया गया है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x मीन्स दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल। ये यहाँ पे x के जगह में थीटा भी दे सकता है। ठीक है, सो दिस एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड अकॉर्डिंग टू ASTC रूल इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan and cot are positive, remaining all 4 trigonometric functions are negative, right? That's why the value of cos x is here negative. Okay, चलो ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक बताना चाहता हूँ। शॉर्टकट टेक्निक का मतलब है, सिंस यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, cos x का वैल्यू दिया गया है, तो cos x का जो रेसिप्रोकल है वो पहले फाइंड आउट कर लेता हूं, आसान हो जाएगा काम। ओके, सिंस cos x इज गिवन एंड वी नो द वैल्यू ऑफ cos x इज दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x इज sec x, तो sec x इज इक्वल टू, तो फिर हो जाएगा -2 बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल। यस, सो ये हो गया, एक फंक्शन का वैल्यू निकल गया, sec x का वैल्यू। ठीक है, नाउ सिंस वी नो sec x से दूसरा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? एक के साथ एक लिंक है, एक फंक्शन के साथ और एक फंक्शन का लिंक है। जैसे cos x का वैल्यू दिया गया है, इमीडिएटली वी कैन फाइंड द रेसिप्रोकल। अभी sec x का वैल्यू निकाल लिया, तो sec x से कौन सा फंक्शन का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? Yesterday I have given 3 relations, right? The 3 relations are, first one is sin square x plus cos square x is equal to 1. Then sec square x, this is equal to 1 plus tan square x. Then cosec square x is equal to 1 plus cot square x. Yes, these 3 relations I have given in the last class.
So since we know the value of sec x, we can easily define the value of tan x. Yes or not? Because there is a relation between sec and tan. That is sec square x is equal to 1 plus tan square x, right? So we know sec square x is equal to 1 plus tan square x. Therefore tan square x is equal to sec square x minus 1. Put the value of sec x, which is minus 2. So minus 2 whole square is 4. 4 minus 1, that is equal to 3. But this is the value of tan square x. Actually we need the value of tan x. So since tan square x is 3, therefore tan x का value तो फिर क्या होगा? Now the question is, since x lies in the third quadrant, you have to use proper sign. Okay, sign plus होगा या minus होगा, वो ठीक से use करना है. So in third quadrant, tan is always positive. So the value of tan x will be √3 only. Yes, you have to use proper sign. इसीलिए तो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है थर्ड क्वाड्रेंट में. सो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही हम लोगों को सब फंक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट tan x. नाउ सिंस वी नो tan x, फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, दैट इज cot x. तो cot x का वैल्यू हो जाएगा 1 by √3. यस, नाउ सिंस वी नो cot x, अगर cot x का वैल्यू पता है तो और किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? cosec square x equal to 1 plus cot square x. So by using this relation we can find the value of cosec square x. देखो एक के साथ एक लिंक है. So you have to remember all these three relations. सिर्फ यही क्वेश्चन में ही यूज होगा ऐसा कोई बात नहीं है, फिजिक्स में भी यूज होगा. नॉट ओनली इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस होता है ट्रिगोनोमेट्री में जिसमें ये तीन रिलेशंस यूज होता ही रहता है. नॉट ओनली इन ट्रिगोनोमेट्री, इवन इन कैलकुलस ऑल्सो, जो नेक्स्ट आएगा क्लास 12 में भी मिलेगा कैलकुलस पार्ट लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसमें भी ये सब रिलेशंस चाहिए. ओके, सो cot x we know, therefore now apply this relation. The third one we know cosec square x, this is equal to 1 plus cot square x. Put the value of cot x now. 1 plus 1 by 3 हो जाएगा. So 3 plus 1, that is 4 by 3. This is actually cosec square x, but we need cosec x. So therefore cosec x is equal to 4 by √3, right? 4 by √3. So here which side we have to use? It is in the third quadrant. So in third quadrant cosec is always negative, right? So give minus sign. So minus, it will be 2 by √3. Okay, since cosec square x is equal to 4 by 3, therefore cosec x is equal to minus 2 by √3. So this is the value of cosec x. Now one more value is required because sec x we know now, tan x, cot x and cosec x we know. Now one more value you have to find out. Which value you have to find out? Sin x. So since we know the value of cosec x, we can easily find out sin x because the reciprocal of cosec x is sin x only. Therefore sin x is equal to minus √3 by 2. Okay, you have to use a proper sign. देखो यहाँ पे actually माइनस साइन देने का रीजन यही है कि x lies in the third quadrant. That's why you have to give here minus sign. ठीक है? So this is all about the 5 trigonometric functions, the values of the 5 trigonometric functions. ठीक है? ये क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं, मैं बोला था कि टुकड़ा टुकड़ा में भी दे सकता है. जैसे कि cos x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? cos x is equal to -12. फाइंड द वैल्यू ऑफ cot x, ऐसा भी दे सकता है. ओके, तो cos x का वैल्यू -12 है तो cot x का वैल्यू कहां से मिलेगा? तो फिर ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा. cos x से पहले sec x निकालना है, sec x से उसके बाद tan x का वैल्यू निकालना है. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड cot x. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, डायरेक्ट cos x से cot x फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है. तो cos x से cot x डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट cos x से sec x से tan x से cot x हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. और इन another way you can solve this question, you can apply the first relation, but if you apply the first relation then you will get the value of sin x, right? तो sin x निकल जाएगा तो cosec x निकल जाएगा, रेसिप्रोकल है sin x का. अगर cosec x निकल जाएगा तो
फिर थर्ड रिलेशन यूज करने से ही तो कॉट एक्स निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही 2-3-4 स्टेप्स लिखना ही है, ठीक है। अल्टीमेटली वो घुमा फिरा के 3-4 स्टेप्स लिखना है, वेदर you proceed in this way, that is from sec x, tan x and then cot x, or from sin x then cosec x then cot x, it will be same meaning only, but क्वेश्चन ऐसा आ सकता है 1 मार्क का, ठीक है। अगर आउट ऑफ 5 कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछेगा तो फिर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मतलब इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, देन इट विल बी लाइक 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चंस, राइट। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 3.2 का। सो इफ यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ऑल्सो, बिकॉज 2, 3, 4, 5 सिमिलर मॉडल का क्वेश्चन है। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज 4 क्वेश्चंस, so you have to solve, you have to try by yourself question number 2, 3, 4, 5 similar model question. Okay, now from question number 6 I will discuss. This is another model, question number 6. So जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, find the values of the following trigonometric function. Question number 6, sin 765 डिग्री, 765 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं कल बताया था कि लास्ट क्लास में अप टू 180 डिग्री तक वैल्यूज 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, दैट इज sin 180 तक बताया था, फ्रॉम 0 to 180, cos from 0 to 180, then tan from 0 to 180. तो up to 180 I have explained, लेकिन यहां पे दिया गया है 765 डिग्री। सो इफ यू नो अप टू 180 डिग्री, तो फिर यू कैन फाइंड एनी एंगल्स, नॉट ओनली 765। इफ इट इज लाइक 1410 और समथिंग लाइक दिस, एंगल और भी बड़ा होगा तो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर अप टू 180 डिग्री। ओके, तो इतना बड़ा एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, कल मैं ये भी बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू कैसे ब्रेक करके फाइंड आउट करना है। वो ब्रेकिंग मेथड जो टेक्निक है वो मैं बताया था कल। सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई हियर ओनली। ओके, सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई हियर ऑल्सो। 765 को भी ब्रेक करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस ओनली। ओके, बट व्हेन यू ब्रेक दिस एंगल, लिसन केयरफुली, जब ये एंगल को ब्रेक करोगे तब याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ 90 में ही ब्रेक करना है। कल मैं बार बार बोला था यही बात, हमेशा इन टर्म्स ऑफ 90 में ब्रेक करो, तो फिर एएसटीसी रूल फॉलो करना आसान हो जाता है। ठीक है, इट इज नॉट ओनली द सोल्यूशन, another process also there, okay, but it is easy if you break the angle in terms of 90. If you write the angle in terms of 90, then it will be easy to follow ASTC rule, because from ASTC rule only you have to find the values of this angle, right? तो ASTC रूल फॉलो करने के लिए पहले एंगल को इन टर्म्स ऑफ 90 में ब्रेक करना है। वेरी सिंपल, देख लो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं वो पहले देख लो। 765, राइट। रफ में ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लो, सबसे आसान होता है। ठीक है, 0 to 90, 180, 270, 360, एंगल को फॉलो करना है। एंगल को फॉलो करना है, यहाँ पे 765 है, वो देख के मैं घुमा रहा हूं। ठीक है, सो 360 डिग्री तक आया। 360 प्लस 90 450, 450 प्लस 90 540, 540 प्लस 90 630, 630 प्लस 90 720 हुआ। तो कितना बार रोटेट हुआ? 2 बार रोटेट हुआ, तो इसीलिए तो 720, 360 प्लस 360। लेकिन यहां पे एंगल कितना है? 765, तो 720 डिग्री तक ऑलरेडी मिल गया। यस, और एक बार अगर घूमेगा तो 720 प्लस 90 इट विल बी 810, राइट। 720 प्लस 90 और एक बार रोटेट होगा तो अप टू फर्स्ट, मतलब क्वाड्रेंट वाइज जाना है, एक एक क्वाड्रेंट, this one, then move to this one, then you have to move to this one. Okay, so 720 already हो गया। So sin of, how can we write 720 in terms of 90?
720 को इन टर्म्स ऑफ 90 में कैसे लिख सकते हैं? कैन आई राइट 720 एज 8 इंटू 90 प्लस, अभी बोलो 720 के साथ और कितना ऐड करने से 765 होता है? 720 के साथ 45 ऐड करना पड़ेगा। और कल जो मैं एक्सप्लेन किया था अबाउट लाइक 90 प्लस थीटा, दिस थीटा इज दिस एंगल। ओके, कल मैं बताया था कि थीटा इज अननोन है यार, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। एंड दिस थीटा मस्ट बी नोन एंगल, थीटा मस्ट बी नोन। नोन एंगल मीन्स इट कैन बी 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 और 60 और 90। ठीक है, थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे, जो थीटा के बारे में कल बोला था, दिट मस्ट बी नोन। नोन का मतलब 0 से 90 डिग्री तक होना चाहिए, बीच में होना चाहिए 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, बिकॉज वी नो ओनली दोज वैल्यू, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90। सो यू हैव टू ब्रेक द एंगल इन सच ए वे दैट, दो चीज हमेशा दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ 90 प्लस समथिंग लाइक नोन एंगल, इन टर्म्स ऑफ 90 प्लस नोन एंगल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा गिवन एंगल को, राइट? सो 8 into 90 is 720, 720 plus 45 is 765 or not? So in this way only you have to break. ठीक है, so this is equal to, now 8 is even or odd number? This is even number. So since this is even number, there will be no change in the trigonometric function. Yesterday I have discussed, in the last class I have discussed all these things. If the number is even, then the trigonometric function remains unchanged. If the number is odd, then sin will become cos. So since this is even number, तो sin sin फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन sin के आगे माइनस या प्लस ये साइन यूज होगा कि नहीं, वो कैसे चेक करना है? 8 into 90 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? जैसे कि मैं यहाँ पे चेक किया था 8 into 90, 8, दिस इज 1 into 90। मैं यहाँ पे रब करके फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार फिर से देखना है, ये टेक्निक याद रखना पड़ेगा। ओके, 1 into 90, 2 into 90, 3 into 90, 4 into 90, 5 into 90, 6 into 90, 7 into 90, 8 into 90। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट तक 8 into 90 होता है। तो 8 into 90 के साथ प्लस थीटा भी है ना, तो 8 into 90 के साथ अगर कोई एंगल को ऐड किया जाता है तो मतलब इट इज मोर देन 8 into 90, द ओवरऑल एंगल इज मोर देन 8 into 90। तो मोर देन 8 into 90 होगा तो this 45 degree lies in the which quadrant? First quadrant only na, because if 8 into 90 lies in the fourth quadrant, तो plus 45 is less than 90, so that means it is lies in the first quadrant only, next quadrant में move होगा। ठीक है, so in the first quadrant we know all the trigonometric functions are positive, ASTC rule, all trigonometric functions are positive, so this is positive only। So sine of 8 into 90 plus theta is equal to sine theta only. There will be no change in the trigonometric function. Why? Because this number is even number. So we know the value of sine 45, which is 1 by root 2. So this is the value of sine 765 degree. In this way you have to find the value. Okay, this is the value of sine 765 degree. Okay, so first question इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, और भी क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? cosec of minus 1410 degree. Look at here. First of all, you have to check the angle, whether the given angle is negative or positive angle. Here the angle is negative angle. So if it is a negative angle, apply the property. In the last class I have given the derivation. If you apply the property cosec of minus theta, what is the property? Cosec of minus theta is equal to, we know, minus cosec theta. Okay, ये बात याद रखना है। यहाँ पे एंगल पॉजिटिव था, so इसलिए वो प्रॉपर्टी में फॉलो नहीं किया। अगर एंगल नेगेटिव होगा तो apply the property, this theorem you have to use. Okay, we know that cosec of minus theta is equal to minus cosec theta. So it is also like this only, cosec of minus theta, this is equal to minus cosec थीटा, दैट इज 1410 डिग्री। ओके, पहले थ्योरम को यूज करना पड़ेगा, तो थ्योरम को मैं अप्लाई किया। अभी क्या करना है? नाउ यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीड्यूर अगेन।
क्या करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू ब्रेक दिस एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 एंड नोन एंगल, 90 एंड नोन एंगल। और जो बीच में जो साइन है वो साइन हमेशा प्लस होगा बोल के ऐसा कोई बात नहीं है, समटाइम्स इट विल बी नेगेटिव ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ओनली, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाना है, ठीक है। सो फिर से मैं ये ASTC रूल में जाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ 90 एंड नोन एंगल में ही तो ब्रेक करना है। See, look at here again, 1 into 90, 2 into 90, 3 into 90, 4 into 90, मतलब 360 हो गया। मुझे देखना है 1410 तक, 5 into 90, 6 into 90, 7 into 90, 8 into 90, 720 तक हो गया। यस, 720 तक हो गया। 9 into 90, 10 into 90, 11 into 90, 12 into 90, तो 12 into 90 मतलब another 360 you have to add, so that is 0, 8, 10, 1080 आया, लेकिन यहाँ पे है 1410, so 1080 के साथ if you add another 90, it will be 0711, 1170, यहाँ पे है 1410, ठीक है। और एक 90 तक जाता हूं, क्या होता है देखता हूं, 0, 16, 6, carry 1, 2, here it is 1, 1260, right? Another 90, plus 90, 0, 15, 5, carry 1, 3, 1350, another 90, if I add another 90, 0, 14, 4, carry 1, 4, 1, look at here, 1440, लेकिन यहाँ पे है 1410, कोई प्रॉब्लम नहीं है, you have to break the angle in नियरेस्ट एंगल में ब्रेक करना है, ठीक है। मैं यहां तक ही क्यों स्टॉप किया, क्योंकि यहां तक स्टॉप करने से इसका नियरेस्ट एंगल मिलेगा। यहां पे है एक्चुअली 1410, लेकिन यहां तक मुझे मिला 1440, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माइनस कॉसेक 1440, लुक एट हियर, 1440 कितना सब्ट्रैक्ट करने से मुझे सेम एंगल मिलेगा 1410, दैट इज 30 डिग्री, ओके, -30। मैं इसलिए बोला था कि हमेशा प्लस होगा बीच में, ऐसा कोई बात नहीं है, माइनस साइन भी हो सकता है, ठीक है। सो माइनस कॉसेक ऑफ, नाउ 1440 ब्रेक इन टर्म्स ऑफ 90, जैसे कि 720 को मैं ब्रेक किया था इन टर्म्स ऑफ 90, दैट इज 8 into 90, 1440, ये डायग्राम से पता चल जाएगा कितना बार रोटेट हुआ ये, ठीक है, डायग्राम से पता चल जाएगा। 1 2 3 4, 4 into 360 करने से ही ये मिलेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 मतलब 4 into 360 अगर करूंगा तो मुझे मिलेगा ये, लेकिन मुझे तो ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ 90 में, ये 360 को इन टर्म्स ऑफ 90 कैसे लिख सकता हूं फिर, 4 into ये 360 को इन टर्म्स ऑफ 90 लिखने के लिए 4 into 90 लिखना पड़ेगा। यस, सो 4 4s are 16, दैट इज 16 into 90 -30 डिग्री, 16 into 90 means 1440, ठीक है। और -30 डिग्री क्यों? बिकॉज द गिवन एंगल इज 1410, मुझे तो वो लाना पड़ेगा ना। ओके, नाउ 16 is even or odd number, this is even number, again there will be no change in the trigonometric function, so it will be minus cosec, माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि पहले से ही माइनस है इसलिए माइनस देना पड़ेगा, ओके, cosec। Now 16 into 90 lies in which quadrant? Clearly from this diagram we can say that 16 into 90 lies in the fourth quadrant itself. So fourth quadrant minus theta, मैं ये भी बोला था कल कि अगर माइनस थीटा होगा तो it will be in the same quadrant only. So since 16 into 90 lies in the fourth quadrant, minus theta भी है, so that means it will be in the fourth quadrant only. अगर यहाँ पे प्लस समथिंग होगा तो इट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। सो सिंस यार माइनस साइन इज देयर, सो इट विल बी इन द सेम क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, कॉसेक इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉसेक इज ऑलवेज नेगेटिव। सो वन मोर माइनस साइन यू हैव टू राइट हियर, दैट इज माइनस ऑफ माइनस cosec 30 डिग्री। सो माइनस माइनस प्लस, and the value of cosec 30 degree is 2 only, because the value of sin 30 is half, and since cosec is the reciprocal of sin, that means the value will be 2 only. Okay, in this way you have to solve, you have to you can find the values of such type of angles. देखो कितना बड़ा बड़ा एंगल्स है और कैसे ब्रेक करना है, ये रूल फॉलो करो, सबसे आसान है। Always try to break the given angle in terms of 90, it will be easy.
Okay, and plus or minus something known angle. Known angle means it will be either 0 degree or 30 or 45 or 60 or 90. देखना ब्रेक करने से वही एंगल ही आएगा. ठीक है. So this is all about when the angles given in terms of degree measure. दोनों एंगल जब मैं डिस्कस किया डिग्री मेजर के बारे में. अगर क्वेश्चन में रेडियन मेजर दिया गया तो बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, राइट, डिग्री एंड रेडियन. तो अगर रेडियन में दिया जाएगा तो क्या होगा. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 19 पाई बाई 3. 10 19 पाई बाई 3. नाउ हियर द एंगल इज इन रेडियन मेजर. देयर इज नो प्रॉब्लम. If it is in radian measure, you can convert it into degree measure by putting pi is equal to 180 degree. Okay, ये बात याद रखना है. Another way also we can solve, but अभी वो टेक्निक याद रखने की जरूरत नहीं है. जब ट्रिगोनोमेट्री ऑलमोस्ट एंड में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब मैं सब टेक्निक बताऊंगा. ठीक है, अभी के लिए थोड़ा इजी मेथड देखो. दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इन डिफरेंट वे ऑल्सो. वो डिफरेंट वेज जो है वो दूसरा टेक्निक मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. पहले थोड़ा इजी मेथड देख लो. इफ द एंगल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to convert it into degree measure by putting pi is equal to 180 degree. We know radian can be converted into degree measure by putting pi is equal to 180 degree. So if I put pi equal to 180 degree, then see what will happen. ये हो जाएगा 60. So that is a 10 19 into 60, right? 10 19 into 60 हो जाएगा. तो 19 into 60 कितना होता है. 19 6 1140. दिस विल बी द एंगल, राइट. अभी 1140 जो है ये एंगल को इन टर्म्स ऑफ 90 एंड नोन एंगल में ब्रेक करना है. सो 10 1140 को इन टर्म्स ऑफ 90 और नोन एंगल में कैसे ब्रेक किया जाएगा. 1 into 90, 2 into 90, 3 into 90, 4 into 90, 360 plus 90, 450, 450 plus 90, 540, 540 plus 90, 630, 720, 810, 900, 990, 1080. ओके, 1080 तक मुझे मिला 3 बार रोटेट होने से. देन 1080 प्लस 90, 1080 plus 90, that is 071170, and here 1140 is there. Okay, so 1170 minus 30 will be 1140 only. That is 10 of. Now 1170 you have to write in terms of 90. How can we write? Look at here. 3 बार रोटेट हुआ प्लस 90. 3 बार रोटेट हुआ मतलब 3 into 360 प्लस 90 डिग्री तक गया ना. प्लस 90 डिग्री तक गया तो 3 into 360 तो फिर कितना होगा. 3 बार रोटेट हुआ तो 3, that is 12 into 360, 12 into 90 और एक बार 90 आया. Look at here, this is 4 into 90, 8 into 90, 12 into 90 plus another 90. So that means how much? 13 into 90 only. Yes, 13 into 90. So 13 into 90 minus 30 degree. Okay, now this is odd number. अगर ये नंबर ऑड है तो 10 will become cot. Okay, now the question is whether here you have to write plus or minus sign. चेक करो. 13 into 90 lies in which quadrant? Clearly we can say that 13 into 90 lies in the first quadrant. Minus 30 degree है, so it will be in the first quadrant only, and we all know that in first quadrant 10 is always positive. Actually all trigonometric functions are positive in the first quadrant, so this will be then cot 30 degree. The value of tan 30 degree is how much? The value of tan 30 is 1 by root 3, so that's why the value of cot 30 will be root 3 only. Okay, so this is the solution of this question. अगर इन टर्म्स ऑफ पाई में दिया जाएगा तो एंगल को पहले पाई इक्वल टू 180 डिग्री पुट करके इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हो. करने के बाद बाकी सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8.
Now the remaining two questions, that is question number 9 and 10, you have to try by yourself. Okay, so this is all about exercise 3.2 NCERT. In the next part, I will discuss about compound angles in the next part. Okay.